Hey guys, welcome back to my channel. On much demand, I bring for you one of the writing skills today. काफ़ी time से I was getting messages, and children have been asking me all these days that they wanted me to come up with some writing skills too. Before we begin, guys, let's not miss the shout out. Guys, this shout out goes to Genia Goyal. Genia has been a very sweet and a caring person, and Genia ने भी मुझे बहुत ज़्यादा motivate किया right from day one. And when I resumed my channel after 3 years, like the first video you must have seen in my channel was in the year 2018. So I resumed it this year in February 2021, of course. So Genia was the one, who helped me a lot, and she would tell me, ma'am, this is visible in your playlist, that thing is visible, like we all do. We keep saving the videos that we like a lot, and I would just follow what she would say, and here I am today. Anyway, thank you so much, Genia. God bless you, and may God bless you in all your endeavors in the future. And may you always remain happy. Thank you so much. Guys, keep on commenting and subscribe to my channel and share it so that I can feature you in my next video in the shout out. So today I come up with notice writing. Notice writing is important for classes 6 to 12 or maybe other classes also, primary classes as well, as per the curriculum or the syllabus that is followed in your school. So let's get going about notice writing, children. But the first thing that you must know about notice writing, that yes, we do refer to it as a writing skill. हम उसे writing skill ज़रूर बोलते हैं, but we also refer to it as a drafting skill. Why drafting skill? Because notice writing एक box में बनता है. We never write a notice without a box. So guys, remember, today we are gonna do a writing skill that is also referred to as a drafting skill. So let's see, why do we write notice? A notice is a formal means of communication in order to announce something. जब भी कोई announcement करना होता है, चाहे वो किसी स्कूल में हो, चाहे किसी टाउनशिप में हो, अपार्टमेंट्स में हो, या फिर कोई पब्लिक नोटिस हो जो आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी देखने को मिलते हैं, तो जब भी कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है या कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी होती है तो नोटिस लिखा जाता है. तो आई होप इट्स रिंगिंग अ बेल फॉर यू. ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है कि ये फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. इट्स नॉट दैट यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड. सो बिकॉज ये फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसीलिए इसकी जो लैंग्वेज है वो भी फॉर्मल है, टोन फॉर्मल है. दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. Most important thing that you have to understand, you have to remember about notice writing, children, are 5 W's. ये 5 W's के बगैर आप नोटिस लिख ही नहीं सकते. यहाँ पर आप देखोगे कि एक सीक्वेंस में 5 W's मैंने लिखे हुए हैं. सबसे पहले what is the event about? What is the event we are talking about? What is the notice about? ठीक है, तो the first W is what, notice किस बारे में है. Secondly, when, कब है, तो उसका डेट जो हमने यहाँ पे what मेंशन किया है उसका डेट और टाइम हम when में मेंशन करेंगे. Next is where, कहाँ पर है, वेन्यू क्या है. इवन इफ इट्स अ सिंपल कॉम्पिटिशन इन द स्कूल, बट स्कूल में भी आपको ये तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, वेदर इट्स इन द ऑडिटोरियम और इट्स इन द स्कूल लाइब्रेरी. सो वी नीड टू मेंशन द वेन्यू एज वेल. नेक्स्ट, whom to contact.
कोई तो होगा जिसके पास हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी इफ़ वी इन केस वी वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट कंपटीशन, या जो भी है जिस बारे में भी नोटिस है, जो भी इवेंट आपको बताया जा रहा है। तो अगर हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम किसे कांटेक्ट करेंगे? दैट ऑल्सो necessarily has to be there in a notice. Next, sometimes we also mention who is to benefit. For instance, let's say it's a charity show or something, तो यहाँ पर आपको mention करना पड़ेगा. And there is one more thing children, आप जो ये बॉक्स देख रहे हो, ये फिगर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि द सीक्वेंस विल बी द सेम. हम क्लॉकवाइज चलेंगे. सबसे पहले व्हाट, इवेंट क्या है, डेट एंड टाइम, कब वो ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, वेयर, वेन्यू, हु इज टू बेनिफिट, किसके लिए किया जा रहा है वो, एंड फाइनली whom टू कॉन्टैक्ट, किसको कॉन्टैक्ट करेंगे अगर हमें कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो. लेट्स लुक एट द फीचर्स ऑफ नोटिस राइटिंग चिल्ड्रन. जब भी हम कोई राइटिंग स्किल लिखते हैं, रिमेंबर कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया होता है जो आपको फुलफिल करना होता है. एंड लेट मी टेल यू कि नोटिस राइटिंग लगता बहुत इजी है, बट जब आप उसको लिखने बैठते हो तो देयर आर सो मैनी गूफ अप्स, इतनी सारी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं. कभी तो वो यही भूल जाते हैं कि ये एक फॉर्मल पीस ऑफ नोटिस, फॉर्मल पीस ऑफ अनाउंसमेंट है तो फॉर्मल टोन यूज़ होगी, और या फिर कहीं ना कुछ मिस हो जाता है. सो लेट्स लुक एट द पॉइंट्स दैट यू मस्ट रिमेंबर. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, a box has to be made since it is a drafting skill. That is the reason मैंने सबसे पहले आपको यही बात बोली थी कि it is a drafting skill. तो हम कभी भी नोटिस बना ही नहीं सकते बिना बॉक्स के. समटाइम्स इवन 1 मार्क इज डिडक्टेड. आप अगर आपका नोटिस लेट्स से जैसे अभी प्रेजेंट 11 एंड 12 में 3 मार्क्स का है, या और दूसरी क्लासेस में 5 मार्क्स का भी हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने नोटिस नहीं बनाया, स्ट्रेट अवे 1 मार्क मे बी डिडक्टेड. ऑलराइट. Next point that you must remember, the word limit for notice writing is 50 words. Now when I say 50 words, basically आपके 4 to 5 sentences में ये 50 words cover up हो जाएंगे. So that I'll be telling you just now how to go about it. तो उसके लिए परेशान मत होइए. इसमें अब अगर हम 4 to 5 sentences बोलते हैं तो कौन कौन से 4 to 5 sentences हैं वो आप keep watching this video towards the end. मैं आपको दिखाऊंगी सारे specimen. Then next again very important point, formal tone use होनी चाहिए और formal language use होनी चाहिए. इनफॉर्मल लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगी यहाँ. नेक्स्ट, टॉप पर जब हम बॉक्स बनाते हैं तो इनसाइड द बॉक्स अबव द कंटेंट टॉप पर हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले नोटिस, द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और फर्म, and then we leave a line and we write the caption. So ये 3 चीज़ें हैं जो कंटेंट से पहले जाती हैं. Then towards the end, मतलब कंटेंट के बाद हम क्या क्या लिख सकते हैं? नेम ऑफ अथॉरिटी, मतलब कोई तो होगा ना जो कुछ तो उसका नाम होगा उस पर्सन का जो नोटिस लिख रहा है. सो दैट पर्सनस नेम. और 99.99% केसेस में चिल्ड्रन नेम क्वेश्चन में गिवन होता है. समटाइम्स 2 नेम्स आर गिवन. यू आर शॉन और शैरन, तो एक बॉय का नेम होगा और एक गर्ल का नेम होगा. So you have to choose one name out of the 2 given names. Remember that. Okay. फिर उसका पोस्ट आपको लिखना ज़रूरी है. कुछ ना कुछ तो आप पोस्ट होगा ना आपका. आप कोई तो पोस्ट होल्डर होगे जो आपको इतनी अथॉरिटी मिली हुई है ये अनाउंसमेंट करने की. So that has to come. And thirdly, the date should be written after the content, meaning वो डेट की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे, when the notice was written. Next guys, the content should have a maximum of 4 to 5 sentences
और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए, एक आपकी ओपनिंग लाइन हो जाती है, एक आपकी क्लोजिंग लाइन हो जाती है, एक आपका वो सेंटेंस हो जाता है जो आपने W's के बारे में बताया, फर्स्ट 3 W's, व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है। उसके अलावा whom to contact या फिर who is to benefit, सब मिला के 4 to 5 सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो हमारे 50 वर्ड्स का क्राइटेरिया तो वैसे ही फुलफिल हो गया। Next guys, you have to remember is content should be written in one paragraph. Notice writing में it's never advisable to change the paragraph. एक छोटा सा ही तो पैराग्राफ होना है, 4 to 5 सेंटेंसेस उसमें होने हैं, तो फिर हमें पैराग्राफ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ गाइस, समथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस यूज़ करना है। पैसिव वॉइस का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ को यहाँ समझिए, आपको ये वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं अपने नोटिस में। आई, यू, मी, माई सेल्फ, योर, आर, आप समझ रहे हो? कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको सब्जेक्ट की, मतलब जो लिख रहा है नोटिस, उस पर्सन की आइडेंटिटी बताता है, ऐसे वर्ड्स हमें अवॉइड करने चाहिए। यहाँ पे सेंटेंस गिवन है, ठीक है। एक सेंटेंस में देयर इज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हम सब्जेक्ट कौन होता है? जो डूअर है ना, किसी वर्क का डूअर है, हाँ, तो डूअर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस सब्जेक्ट हुआ हमारा यहाँ, कॉट द थीफ, तो वर्क किस पर हुआ है? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? थीफ। अब आप यहाँ पे देखोगे सब्जेक्ट इज गिवन मच इम्पोर्टेंस हियर। कैसे पता हमें सब्जेक्ट को, पुलिस को, इस वर्ड को यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है? बिकॉज पुलिस को, सब्जेक्ट को हमने पहले मेंशन किया है और ऑब्जेक्ट को बाद में सेंटेंस में मेंशन किया है। पैसिव वॉइस में इसका ऑपोजिट होता है। अगर हम इसी सेंटेंस को, द पुलिस कॉट द थीफ को, अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, सो इट विल बिकम द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। अब आपने देखा ना पैसिव वॉइस में क्या हुआ है, हमने थीफ को, मतलब ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, इसीलिए हम उसको पहले ले आए हैं। पहले क्या हुआ था, हमने सब्जेक्ट को पहले लिखा था और ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखा था। अब बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है, अब हम सब्जेक्ट को लास्ट में ले आए हैं और ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आए। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज गिवन इम्पोर्टेंस इन पैसिव वॉइस। अब आप समझिए कि इसका नोटिस राइटिंग से क्या मतलब है। चाहे वो नोटिस राइटिंग हो, आगे चल के हम एडवर्टाइजमेंट्स भी करेंगे, चाहे रिपोर्ट राइटिंग हो, हमेशा ध्यान रखिए चिल्ड्रन दैट सब्जेक्ट का मतलब है राइटर, मीनिंग यहाँ पे जो पर्सन नोटिस लिख रहा है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट का मतलब है इंफॉर्मेशन। अब इसको बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल से समझिए। सपोज आपके स्कूल में एक नोटिस लगाया गया है जिसमें लिखा है फॉर दिस क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ते हो उस क्लास को पिकनिक पे ले जाया जाएगा, ठीक है। तो आपने उसको रीड किया और आप भागते हुए गए, अपने फ्रेंड्स को क्या बताओगे कि वो नोटिस जो लगा है पिकनिक के बारे में उसे किसने लिखा है, मीनिंग सब्जेक्ट के बारे में, या फिर इंफॉर्मेशन बताओगे, ऑब्जेक्ट के बारे में बताओगे। व्हेन इज द पिकनिक, क्या हम कैजुअल यूनिफॉर्म में आ सकते हैं, सिविल ड्रेस में आ सकते हैं, क्या हम मोबाइल फ़ोन्स, कैमरास कैरी कर सकते हैं अपने साथ, है ना, ये इंफॉर्मेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैसिव वॉइस का मतलब नोटिस राइटिंग में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, हु इज राइटिंग द नोटिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, बट हाँ हमें नाम तो लिखना है क्योंकि हमें उसके मार्क्स मिल रहे हैं ना, वो फॉर्मेट का पार्ट है, द नेम ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग इट। योर ओपनिंग लाइन में बी दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट, और उसके बाद वो हमारे 4-5 W's आ जाएंगे। अदर दैन दिस आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, and then you continue with the W's. Now let's look at the format of a notice, children.
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहती हूँ दैट आप फॉर्मेट तो देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, मगर ये चीज़ कभी मत भूलना कि पहले हमें 3 साइड्स ऑफ द बॉक्स यहाँ पे बनाने हैं ओनली यूजिंग अ पेंसिल एंड अ रूलर। आप कोई और स्केच पेन या कोई ब्लैक पेन या ब्लू पेन यूज़ नहीं करोगे ये बॉक्स बनाने के लिए। और जहाँ पे भी हमें अंडरलाइन करना है पूरे पेपर में ही, आपके पूरे सब्जेक्ट मैटर में, रिमेंबर कि हमें पेंसिल और रूलर से ही अंडरलाइन करना चाहिए। फ्री हैंड से बॉक्स नहीं बनाना है, पेन से नहीं बनाना है। आई होप दैट इज़ क्लियर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब हम नोटिस लिखने जा रहे हैं सबसे पहले हमको 3 साइड्स ऑफ द बॉक्स बनाने हैं एंड देन वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग द नोटिस। और जब वो ख़त्म हो जाता है, नोटिस हमारा फिनिश हो जाता है, देन वी लीव द लास्ट लाइन एंड देन ड्रॉ द 4th साइड ऑफ द बॉक्स। ये तरीका होता है नोटिस राइटिंग लिखने का। मैं हमेशा अपनी क्लास में एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप जब स्कूल के लिए ड्रेसअप होते हो तो पहले आप अपने शूज़ पहनते हो या सॉक्स पहनते हो। सी, देर इज़ अ प्रॉपर सीक्वेंस दैट हैज़ टू बी फॉलोड ना। पहले तो सॉक्स पहनोगे तभी तो शूज़ पहनोगे, या फिर पहले शूज़ पहन लोगे उसके बाद सॉक्स के साथ स्ट्रगल करते रहोगे। सो दैट्स एक्चुअली सो फनी इवन टू विजुअलाइज। तो वैसे ही यहाँ पर होता है, अगर आपने पहले पूरा नोटिस लिख लिया और उसके बाद आप बॉक्स बनाने चले हो तो इट्स लाइक पहले आपने शूज़ पहन लिए और उसके बाद यू आर स्ट्रगलिंग विद योर सॉक्स। सो इमेजिन दैट एंड अंडरस्टैंड कि ये बिल्कुल गलत होगा। इसीलिए हमेशा आई रिपीट, पहले 3 साइड्स ऑफ द बॉक्स बनाएंगे, फिर पूरा हम नोटिस लिख लेंगे, फिर हम लास्ट लाइन छोड़ के बॉक्स को क्लोज कर देंगे, लास्ट साइड ऑफ द बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, चलो नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मेट नाउ। On top you will write NOTICE, notice, in uppercase, in capital letters. उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखेंगे। कभी कभी नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फर्म के साथ सिटी भी होता है, वो भी आप लिख सकते हो, या वो नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वी लीव अ लाइन एंड वी राइट द कैप्शन। कैप्शन का मतलब हेडिंग, टाइटल लिखते हैं हम। यूजुअली बहुत आसानी से पता चल जाता है, जब आप क्वेश्चन रीड करोगे आराम से यू कैन इन्फर कि कैप्शन क्या होना चाहिए। नेक्स्ट कंटेंट आप स्टार्ट करोगे एक्सट्रीम लेफ्ट से, ठीक है, एंड देन आपके 4-5 सेंटेंसेस आई फील इतनी लाइंस में आ जाने चाहिए। देन वी लीव द नेक्स्ट लाइन एंड देन द पर्सन हु इज राइटिंग द नोटिस, उसका नेम आएगा, फुल नेम या जो भी नेम क्वेश्चन में गिवन है, या तो उसकी पोस्ट अगर आप पोस्ट होल्डर हो, और अगर पोस्ट होल्डर नहीं हो तो फिर क्लास। दोनों में से एक चीज़, स्लैश है दैट मीन ऑब्लिक है दैट मीन दोनों में से एक चीज़। एंड देन वी राइट द डेट हियर, उसी लाइन में लाइन के ऑपोजिट में जहाँ पे आपने नेम लिखा है ना, नेम के ऑपोजिट में हम डेट लिखेंगे। कौन सी डेट है ये? जब नोटिस लिखा जा रहा है, जिस दिन नोटिस लिखकर डिस्प्ले में लगाया गया है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ चिल्ड्रन, व्हेन इट कम्स टू कैप्शन, कैप्शन जो होता है वो कभी भी फुल सेंटेंस नहीं होता है। इट इज़ अ फ्रेज, रिमेंबर दैट, इट इज़ नेवर अ फुल सेंटेंस। ओके, लेट्स मूव ऑन। आई होप फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। ये परफेक्ट फॉर्मेट है। अगर आप ये फॉर्मेट लिखते हो अपने एग्जामिनेशन में, इवन बोर्ड क्लासेस में, बिलीव मी फुल मार्क्स आने वाले हैं आपके। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्पेसिमेन चिल्ड्रन। यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ स्पेसिमेन लेकर आई हूँ, कुछ सैम्पल्स लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट गोइंग, देख लेते हैं हम। ये देखिए, दिस इज़ अ स्कूल कॉम्पिटिशन। तो हमने उसका नोटिस कैसे लिखा है आप ये देखिए। टॉप पर नोटिस, दोज 3 थिंग्स ऑन टॉप आर द सेम and 3 things down here are the same. All right, so notice, then name of the school, and then जो भी caption है, मतलब जो heading है वो हमने upper case में लिखा है। यहाँ पे हमने painting competition का example लिया है। अब देख लेते हैं हमारी opening line, the students are hereby informed that। अब क्या ध्यान रखना है हमें, जो भी इवेंट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, मतलब पेंटिंग का P,
एंड कंपटीशन का C अपर केस में है। फिर has been organized, pay a lot of attention to this, is organized नहीं लिखोगे आप, has been organized। फिर आ गई हमारी डेट, यहाँ पे डेट का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। आप 25/7/2021 भी लिख सकते हो या आप 25 जुलाई 2021 भी लिख सकते हो। फिर देखो फिर क्या आ गया हमारा, रिमेंबर वो जो 5 W's थे, हाँ फिर आ गया at 10 AM, डेट के फौरन बाद हमें टाइम लिखना है at 10 AM। फिर आ गया वेन्यू, स्कूल लाइब्रेरी, जब भी स्कूल का कोई कंपटीशन होता है या तो स्कूल लाइब्रेरी या स्कूल ऑडिटोरियम लिखिए, वो बेस्ट है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में कुछ और गिवन है। फिर सी द अदर important information here, the registration fee is ₹50. Interested ones may give their names to their class teachers, class teacher भी एक पोस्ट है, इसलिए C caps T caps है ना। तो कभी भी कोई पोस्ट होती है, जैसे यहाँ पे भी हमने हेड बॉय लिखा है तो H और B हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा है। ये भी एक रूल होता है, यू नो, टू व्हेन यू कम अप विद इंग्लिश लैंग्वेज, इसका ध्यान रखना है। क्लोजिंग लाइन देख लेते हैं, फॉर मोर डिटेल्स अंडरसाइन मे बी कॉन्टैक्टेड। लगता तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये क्लोजिंग लाइन में भी आप लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हो। हाँ, यूजुअली बच्चे क्या लिखते हैं, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। मैं आपसे पूछती हूँ, जो आप कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड लिखते हैं और जो मैंने यहाँ लिखा है अंडरसाइंड में भी कॉन्टैक्टेड, दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए प्लीज़। राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी डिफरेंस क्या है। एनीवे सिंस इट्स नॉट अ लाइव सेशन तो मैं आपको बता देती हूँ, जब हम कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन लिखते हैं, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन, वो एक्टिव वॉइस होता है। और हमने अभी देखा कि हम पैसिव वॉइस यूज़ कर रहे हैं। सो पैसिव वॉइस में हम क्या लिखेंगे, फॉर मोर डिटेल्स अंडरसाइंड मे बी कॉन्टैक्टेड। व्हेन वी आर फॉलोइंग अ रूल तो हमें स्टार्टिंग से एंड तक उसे फॉलो करना है ना। ओके अब आप इस स्पेसिमेन में देखोगे चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने कहीं भी कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया है जिससे कि सब्जेक्ट की आइडेंटिटी पता लगती हो। ना आई लिखा है, ना फर्स्ट पर्सन ने लिखा है हमने, ना यू यू एंड योर स्कूल, इस टाइप की लैंग्वेज लिखी है, मीनिंग सेकेंड पर्सन स्पीच भी हमने यूज़ यहाँ नहीं की है। दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ नोटिस। सो चिल्ड्रन प्लीज रिमेंबर दिस एंड प्रैक्टिस इनफ। चलो अब एक और नोटिस देख लेते हैं, लेट्स मूव ऑन। स्पेसिमेन 2 देखते हैं हम नोटिस का। दिस आई हैव टेकन फॉर एन अपार्टमेंट, ठीक है, ऊपर नोटिस ही आएगा बिकॉज स्टिल इट इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट यहाँ हम स्कूल के लिए नहीं, हम अपार्टमेंट्स के लिए लिख रहे हैं, तो ABC अपार्टमेंट या जो भी क्वेश्चन में लिखा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, द कैप्शन इज no water supply for 2 days. Did you notice? Again, this caption may be long enough but it is not a full sentence, it's a phrase. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट्स लिखा था ना, रिमेंबर यहाँ हमने स्टूडेंट्स लिखा था, वैसे ही इस वाले नोटिस में हम क्या लिखेंगे, द रेजिडेंट्स। Residents are hereby informed that there would not be any water supply. Okay, when आ गया 25th and 26th of June 2021। अब अगर ऐसा कोई नोटिस है तो ऑब्वियसली हमको रीज़न तो देना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ रीज़न क्या दे रहे हैं, ड्यू टू क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक्स एंड मेंडिंग ऑफ पाइपलाइंस। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रीज़न दैट यू कैन गिव फॉर सच अ क्वेश्चन। देन ऑब्वियसली अगर ऐसा नोटिस है तो आपको लोग पूछेंगे ना कि ओके फिर वाटर सप्लाई कब स्टार्ट होगा, तो वो भी हमने मेंशन कर दिया, वाटर सप्लाई वुड रिज्यूम ऑन 27 मई 2021। एंड अब आपको ये देखो, अब फॉर मोर डिटेल्स वाली लाइन तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे दे दी गई है। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन कम अप विद। Residents are advised to store enough water and closing line will be inconvenience is regretted. Okay, that means you're feeling sorry कि okay लोगों को water supply नहीं होने से problem होगी। Then the name of the person who is writing it, जो नेम क्वेश्चन में गिवन है वो यूज़ करिए, अगर गिवन नहीं है तो अपना नेम मत लिखिए, XYZ लिखिए। सेक्रेटरी पोस्ट आ गया यहाँ पे एंड द डेट ऑन द राइट हैंड साइड।
Let's move on children and look at the third specimen. Okay, ये एक पब्लिक नोटिस है. अच्छा, पब्लिक नोटिस में यूजुअली ये जिस तरह का मैंने स्पेसिमेन लिया है उसमें कैप्शन की तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इसका कैप्शन हमेशा सेम होता है. यहाँ पे हमने फर्म लिख दिया, ABC फर्म, एंड देन वी हैव रिटन हियर टू हूसोएवर इट मे कंसर्न. टू whomsoever इट मे कंसर्न भी ठीक है. ओके, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स भी नहीं लिखना, हमें रेजिडेंट्स भी नहीं लिखना. यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? द जनरल पब्लिक इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट. अब यहाँ किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है थ्रू द फर्म. जो मैनेजर है वहाँ का वो हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है दैट मिस्टर XYZ द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म. देखो फिर से यहाँ पोस्ट आ गई ना, तो हमने ए कैप्स में लिखा है अकाउंटेंट का. और इन्होंने किया क्या है? हैज़ बिन कॉट मिस अप्रोप्रिएटिंग द फंड्स ड्यू टू विच हिज सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड. अच्छा, मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे घोटाला कर देते हैं कुछ लोग ना पैसों को लेके, तो बिकॉज ये अकाउंटेंट है इन्होंने भी मिस अप्रोप्रिएट कर दिए फंड्स को. ठीक है, तो इनकी सर्विसेज लूज हो गई. अब इसका मतलब देखो कि क्योंकि अकाउंटेंट थे और फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका नीड क्या है पब्लिक नोटिस का कि कोई भी आप उनसे कोई भी लेन देन करेगा तो वो अपने रिस्क पे करे. ये फर्म ने क्लियर कर दिया. सी द नेक्स्ट सेंटेंस, सिंस ही इज नो मोर अ पार्ट ऑफ द फर्म एनी ट्रांजैक्शन विद हिम शुड बी एट one's own risk. Then the name of the person who's writing the notice and the manager, he's representing the firm as well, and the date. All right, एक और देख लेते हैं हम specimen 4. This is an appeal. Okay, now ये अपील है. अब हमने यहाँ पे नोटिस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम यहाँ पे डोनेशंस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं. जब भी कोई रिक्वेस्ट वाली टोन होती है, जैसे कि आपको ये तक क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोटिस टू ऑल द रेजिडेंट एज नॉट टू बर्न क्रैकर्स दिस दिवाली. ओके, फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू. तो वहाँ पे भी आप नोटिस नहीं लिख के अपील वर्ड लिखोगे. तो जहाँ अपील आ जाता है हमको ये समझ लेना चाहिए कि ऑल राइट, यहाँ पे कोई रिक्वेस्टिंग टोन है. फिर यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है मैंने वो जो हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं डॉक्टर ABC, उनके थ्रू आया है, तो यहाँ पे नेम भी ABC हॉस्पिटल का है. डोनेशंस रिक्वायर्ड आपका कैप्शन हो गया. अब देख लेते हैं, ये भी जनरल पब्लिक के लिए है नोटिस. द जनरल पब्लिक इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट. फिर एक पर्सन का नेम यहाँ लिखा मिस्टर XYZ, जो कि सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली है. सोल का मतलब होता है ओनली. एक ऐसा पर्सन है जो बीमार है, जिसको सर्जरी की ज़रूरत है, और वो अकेला ब्रेड अर्नर है, मतलब कि केवल वही एक अर्निंग मेंबर है अपनी फैमिली का. उनको क्या डायग्नोज हुआ है? कोई डिजीज, बोन मैरो कैंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर विच ही नीड्स टू अंडरगो अ सर्जरी. एंड द थिंग इज, हम जो बोल रहे हैं नोटिस में वो ये है कि ही इज़ नॉट एबल टू अफोर्ड इट. वो अफोर्ड नहीं कर सकता इतने ये अमाउंट, ₹10 लाख. तो उसके लिए हॉस्पिटल की तरफ से एक अपील गई है कि प्लीज़ डोनेट, जिससे इस पर्सन की सर्जरी हो सके और उसकी लाइफ सेव हो सके. So let's see the next sentence. The cost of the surgery has been calculated to ₹10 lakh, which he cannot afford. Hence, donations are requested for this noble cause. Noble मतलब एक अच्छे काम के लिए आप डोनेट करिए. यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स भी गिवन हैं, जैसे कि अगर आप डोनेट करना चाहते हो और आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप इन नंबर्स पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं. अच्छा, उसी से रिलेटेड एक चीज़ और देख लीजिए चिल्ड्रन. आप अपने एग्ज़ाम में कभी भी कोई अगर फ़ोन नंबर लिखते हो तो वो इस तरह से लिखे जाते हैं. फर्स्ट 5 डिजिट आप लिख सकते हो, बट लास्ट 5 डिजिट में आप X बना सकते हो. ठीक है, एंड देन द नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ राइटिंग इट, डॉक्टर हुएवर क्वेश्चन में अगर गिवन है वही हम लेंगे, नहीं तो हम डॉक्टर ABC लेंगे, एंड हिज पोस्ट. एंड फाइनली नेम के ऑपोजिट में हम क्या लिखेंगे? डेट, जब लिखा गया है नोटिस, ये अपील की गई है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. इसके साथ ही मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ आज. यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा. आई वॉन्ट यू टू
डू दिस असाइनमेंट, और फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी भी लिख दूंगी। आप ये असाइनमेंट करिए और मुझे मेल करिए जो भी आपका सोल्यूशन है, और जो भी बच्चा परफेक्ट नोटिस लिखेगा उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो जो स्कूल करिकुलम से रिलेटेड होगा उसमें मैं मेंशन करूंगी। सो प्लीज ट्राई इट आउट चिल्ड्रन। Your question is, write a notice for your school notice board in about 50 words informing the students about a session by an eminent psychologist on study skills. Sign yourself as Sean Samantha, cultural in charge of St. Mark's School, New Delhi. तो यहाँ पे आपको नेम्स गिवन है, 2 नेम्स गिवन है, उसमें से आपको एक चूज करना है, उसका पोस्ट भी गिवन है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल असाइनमेंट, यू शुड बी एबल टू डू इट विदाउट अ सिंगल मिस्टेक। So that's all for today children. I sign off here, and please keep on sharing my videos children, or please subscribe, and मेरे जो videos हैं वो सब age groups के लिए appropriate हैं, because I'm focusing on not only the school curriculum but also on English language in general and refining of personality. So I'm sure that you all will motivate me a lot with your comments, and subscribe to my channel. Take care, and see you in my next video.